بہت پہلے کی بات ہے، کسی دور دراز مقام پر ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ نہ بہت زیادہ امیر تھا اور نہ ہی غریب، بس گزارا اچھا ہو جاتا تھا۔ اس کے 3 نوجوان بیٹے تھے، تینوں خوبصورت، سنجیدہ اور سمجھدار جوان۔ لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے، ہوشیار تھے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے اور برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہتے۔ سب سے بڑا بیٹا نصر 21 برس کا تھا، منجلا بیٹا نوروز 18 سال کا، اور سب سے چھوٹا نادر 16 برس کا نوجوان۔ ایک دن باپ نے تینوں کو اپنے پاس بلایا، پہلے انہیں محبت سے اپنے قریب بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر نہایت سنجیدگی سے کہنے لگا، میرے پیارے بیٹو، میرے مرنے کے بعد جو مال تمہارے پاس رہ جائے گا وہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ میں نے جتنا تمہارے لیے کر سکتا تھا کر دیا، مجھ سے زیادہ کی امید نہ رکھنا، لیکن میں نے تمہیں 3 بڑی نعمتیں دی ہیں۔ پہلی یہ کہ تمہیں صحت مند اور طاقتور بنایا، دوسری یہ کہ تمہیں ہتھیار چلانا سکھایا اور تم ماہر سپاہی بن گئے، اور تیسری یہ کہ تمہارے دلوں سے خوف نکال دیا تاکہ تم بہادر بنو۔ اب میری 3 نصیحتیں سن لو اور ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ ایماندار رہنا تو پریشانی سے دور رہو گے، محنت سے جینا تو آرام اور سکون نصیب ہوگا، اور کبھی ایسا کام نہ کرنا جس سے شرمندگی ہو۔ باقی سب کی فکر تم خود کرنا۔ میں نے تمہارے لیے 3 گھوڑے تیار کر رکھے ہیں، ایک کالا، ایک سفید اور ایک خاکی رنگ کا۔ تمہارے تھیلوں میں 1 ہفتے کی خوراک بھی رکھ دی ہے۔ اب سفر پر نکل جاؤ، دنیا دیکھو، گھومو پھرو۔ جب تک دنیا کو نہیں دیکھو گے آدمی نہیں بن سکو گے۔ جاؤ، اپنی قسمت آزماؤ۔ سفر بخیر میرے بیٹو۔ یہ کہہ کر باپ اٹھا اور آہستہ آہستہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے ہی دن صبح سورج نکلتے ہی تینوں بھائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ دن بھر چلتے رہے، یہاں تک کہ اپنے گھر سے بہت دور نکل آئے۔ شام ہوئی تو ایک ویران اور سنسان جگہ پر رک گئے، گھوڑوں سے اترے، کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے، لیکن جگہ سنسان تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ تینوں ایک ساتھ نہیں سوئیں گے۔ رات کو 3 حصوں میں بانٹ لیا جائے گا، ایک بھائی پہرا دے گا اور 2 سوئیں گے۔ سب سے پہلے نصر کی باری آئی۔ نصر تلوار ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ چاندنی رات تھی، چاروں طرف گہری خاموشی، صرف ہلکی ہلکی ہوا کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اچانک کہیں سے شور اٹھا۔ نصر فوراً چوکس ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جہاں وہ رکے تھے وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل میں ایک شیر اپنی کھو میں لیٹا تھا۔ انسانوں کی بو پا کر وہ باہر نکلا اور میدان کی طرف بڑھنے لگا۔ نصر نے شیر کو دیکھا، مگر نہ ڈرا نہ گھبرایا۔ اسے اپنی بہادری پر یقین تھا، بس فکر تھی تو اپنے سوئے ہوئے بھائیوں کی۔ وہ آہستہ سے ایک طرف ہٹا تاکہ شیر کو بھائیوں سے دور لے جائے۔ شیر نے اس کا پیچھا کیا۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر نصر اچانک مڑا اور پوری طاقت سے شیر کے پنجے پر تلوار ماری۔ زخمی شیر دھاڑتا ہوا اس پر جھپٹا۔ نصر پھرتی سے پیچھے ہٹا اور اس بار بائیں پنجے پر وار کیا۔ شیر نے آخری بار پوری قوت جمع کی اور نصر پر ٹوٹ پڑا، مگر نصر تیار تھا۔ اس نے قدم جما کر پوری طاقت سے تلوار شیر کے سر پر ماری، ایک زوردار وار، اور شیر وہیں گر کر بے جان ہو گیا۔ نصر نے خاموشی سے شیر کے چمڑے کا ایک ٹکڑا کاٹا، اپنے کرتے کے اندر کمر سے باندھا اور ایسے واپس آ کر بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد اس کا پہرا ختم ہوا، وہ سو گیا اور نوروز پہرا دینے لگا۔ اس کی باری سکون سے گزر گئی۔ پھر نادر کی باری آئی اور اس کی رات بھی بغیر کسی حادثے کے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو تینوں بھائی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور آگے چل پڑے۔ وہ سارا دن سفر کرتے رہے، لمبا راستہ طے کیا، یہاں تک کہ سورج ڈوبتے ڈوبتے وہ ایک بڑے سے پہاڑ کے سامنے جا پہنچے۔ اس پہاڑ کے دامن میں ایک بڑا سا درخت کھڑا تھا اور اس کے نیچے ایک صاف شفاف چشمہ بہہ رہا تھا۔ تینوں بھائیوں نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں کیا معلوم تھا
کہ اسی چشمے کے قریب ایک غار بھی ہے، اور اس غار کے اندر سانپوں کا بادشاہ اجگر سلطان رہتا ہے۔ لیکن بھائیوں کو اس بات کی کچھ خبر نہ تھی۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا، درخت سے باندھا، انہیں صاف کیا، ان کے آگے چارہ ڈالا، اور پھر خود کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے کے بعد حسب معمول فیصلہ ہوا کہ پچھلی رات کی طرح آج بھی باری باری پہرا دیا جائے گا۔ دو چھوٹے بھائی لیٹ کر سو گئے، اور بڑا بھائی پہرا دینے لگا۔ اس کی باری خیریت سے گزر گئی۔ اب نوروز کی باری آئی۔ چاندنی رات تھی، چاروں طرف سناٹا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ غار کے اندر سے ایک بھاری سی سرسراہٹ سنائی دی۔ وہی اجگر سلطان بڑا سا پھن اٹھائے، پھنکارے مارتا ہوا چشمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نوروز نے اسے دیکھا، مگر ذرا سا بھی نہ ڈرا۔ اسے فکر تھی تو صرف اپنے بھائیوں کی نیند کی۔ وہ آہستہ سے ایک کھلے میدان کی طرف ہٹا تاکہ خطرہ ان سے دور رہے۔ اجگر نے انسان کی بو پائی اور اس کا پیچھا کیا۔ کچھ فاصلے پر جا کر نوروز رک گیا۔ اس نے تلوار نکالی اور پوری طاقت سے سانپ کے ناک کے پاس وار کیا۔ اجگر زمین پر لوٹنے لگا۔ نوروز نے دوسرا وار اس کی پیٹھ پر کیا اور تیسرے ہی وار میں وہیں ختم کر دیا۔ سانپ بے جان ہو کر زمین پر پھیل گیا۔ نوروز نے خاموشی سے اس کی کھال کا ایک لمبا پٹا کاٹا، اپنے کرتے کے اندر کمر سے باندھا، اور واپس آ کر یوں بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد اس کا پہرا ختم ہوا، اور پھر نادر کی باری آئی۔ اس کی پہرا داری بھی بخیریت گزر گئی۔ صبح ہوئی تو تینوں بھائی پھر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور سفر جاری رکھا۔ وہ پہاڑوں سے گزرتے رہے، چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک ٹیلے تک جا پہنچے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، رات اندھیری تھی۔ انہوں نے وہیں رکنے کا ارادہ کیا۔ آگ جلائی، کھانا کھایا، اور حسب معمول دو بھائی سو گئے۔ بڑا بھائی پہرا دیتا رہا۔ پھر منجلے کی باری آئی، اور اس کے بعد چھوٹا بھائی نادر جاگنے لگا۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نادر آنکھیں بند کیے، کان کھولے بیٹھا رہا۔ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھتا، پھر دوبارہ خاموش بیٹھ جاتا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا آگ بجھ گئی ہے۔ اس نے سوچا آگ دوبارہ جلانی چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی وہ ٹیلے پر چڑھ گیا اور ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا کہ شاید کہیں دور کوئی روشنی نظر آ جائے۔ اچانک اسے دور کہیں ایک دیا سا ٹمٹماتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ فوراً نیچے اترا، گھوڑے پر سوار ہوا اور اس روشنی کی طرف چل دیا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ ایک اکیلے ویران مکان کے پاس جا پہنچا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور پنجوں کے بل آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے اندر جھانکا۔ اندر روشنی تھی، چولہے پر کھانا پک رہا تھا، اور اس کے گرد تقریباً 20 آدمی بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے خوفناک تھے، آنکھیں پھیلی ہوئی، اور انداز ایسا جیسے کوئی گہری سازش کر رہے ہوں۔ نادر نے کھڑکی سے اندر جھانکا اور دل ہی دل میں سوچا، یہ تو یقیناً ڈاکو معلوم ہوتے ہیں۔ اگر میں انہیں یوں ہی چھوڑ کر چلا جاؤں تو یہ کسی اچھے آدمی کے لیے مناسب بات نہیں ہوگی۔ کیوں نہ ہوشیاری سے کام لیا جائے؟ کیوں نہ ان کے درمیان رہ کر ان کی چال ڈھال معلوم کی جائے، اور ایسا کچھ کیا جائے کہ ان کو مجھ پر اعتبار ہو جائے، پھر موقع پا کر اپنا کام دکھا دوں۔ یہ سوچ کر نادر نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ایک اجنبی کو اندر آتا دیکھ کر سارے ڈاکو چونک گئے، فوراً اپنے ہتھیار سنبھال لیے، آنکھیں تیز، چہرے سخت۔ نادر نے آگے بڑھ کر ادب سے کہا، حضور، میں آپ کا ایک حقیر سا غلام ہوں۔ میں بہت دور ایک شہر سے آیا ہوں۔ اب تک چھوٹے موٹے دھندے کرتا رہا ہوں، مگر ارادہ تھا کہ کسی مضبوط گروہ میں شامل ہو جاؤں۔ اچانک مجھے آپ کا پتہ چلا اور میں حاضر ہو گیا۔ میری عمر پر مت جائیے، مجھ میں بہت سے گر ہیں، سرنگیں کھودنا، توہ لگانا، خبریں اکٹھی کرنا، سب آتا ہے۔ میں اب کے بہت کام آؤں گا۔ نادر نے ایسی چال چلی کہ ڈاکوؤں کے سردار کو اس پر یقین آ گیا۔ سردار بولا، تم نے اچھا کیا کہ ہمارے پاس آ گئے۔
आओ, यहां बैठ जाओ। नादिर आगे बढ़ा, झुक कर सलाम किया और उनके करीब बैठ गया। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। सब ने मिलकर खाना खाया। इस रात इन लोगों ने बादशाह के महल में डाका डालने का मंसूबा बना रखा था। खाने के बाद सब घोड़ों पर सवार हुए और रवाना हो गए। नादिर भी उनके साथ था। कुछ देर बाद वो बादशाह के बाग के करीब पहुंच गए। अब मसला ये था कि अंदर कैसे घुसा जाए। काफी मशवरे के बाद फैसला हुआ कि सबसे पहले नादिर दीवार फलांग कर अंदर जाएगा और देखेगा कि पहरेदार सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अगर वो सो रहे हों तो बाकी सब एक एक करके अंदर आएंगे। नादिर दीवार फलांग कर बाग में उतरा। उधर उधर देखा तो पहरेदार वाकई गफलत की नींद सो रहे थे। बाग के बीचों बीच दो बड़े पहियों वाली एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। नादिर ने इसे खींचकर दीवार के करीब ला खड़ा किया और बाहर खड़े डाकुओं को इशारा किया कि मौका बहुत अच्छा है। पहला डाकू दीवार पर चढ़ा और जैसे ही इसने सर नीचे किया, नादिर की तलवार चमकी। एक ही वार और उसका सर तन से जुदा। लाश को घसीटकर बाग में फेंक दिया। दूसरा आया, इसका भी यही हाल हुआ। तीसरा, चौथा, और यूं एक एक करके सबका खात्मा हो गया। नादिर ने तन्हा ही सारे डाकुओं को खत्म कर दिया। अब वो खामोशी से महल की तरफ बढ़ा। एक बड़े से हाल के सामने पहुंचा। वहां 3 बड़े दरवाजे थे। चंद लड़कियां पहरा दे रही थीं, मगर वो भी आराम से सो रही थीं। नादिर पहले दरवाजे में दाखिल हुआ। वो क्या देखता है? एक निहायत सजा सजाया कमरा, कीमती पर्दे, नफीस सामान और बीच में एक खूबसूरत पलंग पर एक हुसैन नौजवान लड़की गहरी नींद में सो रही थी। नादिर आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गया और उसके हाथ से सोने की अंगूठी उतार कर अपनी जेब में रख ली। फिर खामोशी से बाहर निकल आया। अब वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। ये कमरा पहले से भी ज्यादा शानदार था। बीच में चांदी का पलंग, इस पर एक और निहायत खूबसूरत लड़की सो रही थी। करीब चंद कनीजें भी नींद में डूबी थीं। नादिर ने दबे कदमों आगे बढ़कर उसकी उंगली से भी अंगूठी उतार ली और वापस हाल में आ गया। अब तीसरे कमरे की बारी थी। ये कमरा सबसे ज्यादा आलीशान था और इसमें जो लड़की सो रही थी वो पहले दोनों से भी ज्यादा हुसैन थी। नादिर आहिस्ता से करीब गया और उसके बाईं कान से बाली उतार ली। फिर खामोशी से वापस लूट आया। दीवार फलांग कर बाग से बाहर निकला, घोड़े पर सवार हुआ और अपने अड्डे की तरफ वापस आ गया। वहां पहुंचा तो दोनों भाई अभी भी सुकून से सो रहे थे। नादिर भी वहीं बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपनी तलवार से खेलने लगा। सुबह हुई। तीनों भाई नाश्ता करने बैठे, फिर घोड़ों पर सवार हुए और आगे सफर पर चल पड़े। चंद कोस चलने के बाद वो एक शहर में दाखिल हुए। एक सराय में कयाम किया, घोड़ों को छप्पर के नीचे बांधा और खुद चाय खाने में जा बैठे। तीनों भाई चाय पी रहे थे और आराम कर रहे थे कि इतने में सड़क पर एक डंडवरची नमूदार हुआ। वो ऊंची आवाज में पुकारने लगा, ए लोगो, कान खोल कर सुन लो। आज रात बादशाह के महल में एक अजीब वाकया पेश आया है। महल के बाग में किसी ने 20 डाकुओं के सर कलम कर दिए हैं और शहजादियों की एक एक सोने की चीज भी गायब है। बादशाह का ऐलान है कि शहर का हर शख्स इस राज का पता चलाने में मदद करे ताकि मालूम हो सके वो कौन सा बहादुर है जिसने ये कारनामा अंजाम दिया। शहर में जो भी अजनबी मुसाफिर हो इसे फौरन महल भेज दिया जाए। ये सुनकर सराय के मालिक ने फौरन तीनों भाइयों से कहा कि वो महल में हाजिर हों। तीनों भाई उठे और बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गए। बादशाह को इत्तला दी गई कि 3 अजनबी आए हैं। बादशाह ने हुक्म दिया उन्हें अलग अलग कमरों में ठहराया जाए। फिर इसने वजीर से कहा, इनसे राज मालूम करो। वजीर ने अर्ज किया, अगर सीधे पूछा गया तो शायद ना बताएं। बेहतर है उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए और हम छप कर उनकी बातें सुनें। चनांचे ऐसा ही किया गया। उनके सामने दस्तरखान बिछा दिया गया, तरह तरह के खाने रख दिए गए और साथ वाले कमरे में बादशाह और वजीर कान लगाकर बैठ गए। खाना शुरू हुआ।
तो नसर ने गोश्त का नवाला तोड़कर कहा, हमें 9 उम्र भेड़ का गोश्त दिया गया है, लेकिन लगता है इसे किसी किता ने दूध पिलाया था। नौरोज ने कहा, हाँ बात तो ठीक लगती है, वैसे बादशाह लोग कुत्ते का गोश्त खाने से भी ग्रेज नहीं करते। फिर नौरोज ने मुरब्बा चखा और कहा, मुझे हैरत है, इस अंगूर के मरब्बे से इंसान की बो क्यों आ रही है। नादिर ने भी चखा और बोला, हाँ सच है, बादशाह तो खूनखार होते हैं, अगर मरब्बे में इंसान का खून भी मिला हो तो ताज्जुब की बात नहीं। फिर नसर ने रोटियों की तरफ देखकर कहा, और ये रोटियां इस तरह तरतीब से सिर्फ एक माहिर नानबाई ही रख सकता है। फिर वो आहिस्ता से बोला, हमें यहां इसलिए बुलाया गया है कि महल के वाक़ये का राज हमसे मालूम किया जाए, हमसे पूछ गुछ होगी। नौरोज ने कहा, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, सच ही बता देंगे। फिर नादिर बोला, बेहतर है, इन 3 दिनों में जो कुछ हम पर गुजरा हम एक दूसरे को सुना दें। सबसे पहले नसर ने अपना किस्सा सुनाया, बताया कि कैसे इसने शेर का मुकाबला किया और सबूत के तौर पर शेर की खाल का टुकड़ा निकाल कर रख दिया। फिर नौरोज ने अजगर का वाकया सुनाया और सांप की खाल का पट्टा निकाल कर सामने रख दिया। आखिर में नादिर ने तीसरी रात का सारा हाल बयान किया और जेब से अंगूठियां और बाली निकाल कर भाइयों को दुखा दी। साथ वाले कमरे में बैठे बादशाह और वजीर के सामने सारा राज खिल गया, मगर गोश्त और मरब्बे वाली बात उनकी समझ में न आई। चुनांचे बादशाह ने फौरन चरवाहे को बुलवाया। बादशाह ने पूछा, सच सच बता, कल जो भेड़ का गोश्त भेजा था, क्या इसे किसी किता ने दूध पिलाया था। चरवाहा कांप गया, बोला, जहां पना, अगर जान की अमान हो तो सच अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, तेरी जान बख्शी, अब सच बता। चरवाहा बोला, पिछली सर्दियों में मेरी बिक्री ने एक मेमना दिया था, मगर वो मर गई। मुझे इस पर तरस आ गया, मैंने इसे एक किता के हवाले कर दिया, इसी ने इसे दूध पिलाकर बड़ा किया। कल वही मेरे पास बचा था, बाकी सब भेड़ें हुजूर के नौकर ले जा चुके थे, इसलिए मजबूरी में वही भेज दिया। अब बादशाह हैरान रह गया। फिर इसने मुरब्बा बनाने वाले को बुलवाया। माली को दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, सच सच बताओ, ये अंगूरों का मुआमला किया है। माली कांपती आवाज में बोला, जहां पना, पिछले साल की बात है, मैंने आपके लिए खास अंगूरों की बेलें बचा रखी थीं, मगर ना जाने कौन रात के वक्त आकर अंगूर चरा ले जाता था। एक रात में बैल के नीचे छप कर बैठ गया, चूर का इंतजार करने लगा। वो रुका, फिर बोला। कुछ देर बाद एक आदमी आया, मैंने गुस्से में आकर डंडा उसके सर पर दे मारा, वो वहीं गिर कर मर गया। मैं घबरा गया और वहीं बैल के नीचे गड़ा खोद कर इसे दफन कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अगले साल बेलें इस तरह परवान चढ़ीं कि खुदा की पनाह, पत्तों से ज्यादा अंगूरों के गुच्छे थे, मगर उनके जायके में जरा सा फर्क था। मैंने वो अंगूर हुजूर को भेजने के बजाय उनका मुरब्बा बनवा लिया। यूं दोनों भाइयों की बात सच साबित हुई। और रही रोटियों वाली बात, तो वो भी दुरुस्त निकली, क्योंकि इस रोज रोटियां खुद बादशाह ने अपने हाथ से तुश्तरी में रखी थीं। मालूम हुआ कि उनके वालिद कभी नाबाई रहे थे। अब बादशाह खुद उन तीनों भाइयों के कमरे में गया, सलाम किया और कहा, तुम लोगों ने जो कुछ कहा सब सच निकला। तुम मुझे और भी ज्यादा पसंद आ गए हो। मेरे मुअज़्ज़ज़ मामानो, मेरी तुमसे एक गुजारिश है। तीनों भाइयों ने अदब से जवाब दिया, अगर आपकी फरमाइश जायज हुई तो हम जरूर पूरी करेंगे। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी 3 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं। तुम लोग यहीं रह जाओ, मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी तुमसे कर दूंगा, पूरे शहर को दावत दूंगा, 40 दिन तक जश्न होगा। नसर ने संजीदगी से जवाब दिया, आपकी बात बड़ी इज्जत वाली है, मगर हम ये कैसे कर सकते हैं? ना हम किसी बादशाह की औलाद हैं, ना हमारे बाप दादा अमीर थे। अपने अपनी बादशाहत कमाई है और हमने मेहनत करना सीखा है। बादशाह ने आजिज़ी से कहा, मानता हूं मैं बादशाह हूं,
मगर तुम लोगों को तुम्हारे बाप ने मेहनत से पाला है। ये फख्र की बात है कि इसके बेटे इतने बहादुर हैं। क्या तुम्हारा बाप मुझसे कम है? हकीकत तो यह है कि मैं ऐसी लड़कियों का बाप हूं जिनके लिए बड़े बड़े बादशाह झक चुके हैं। मगर मैं तुमसे दरखास्त कर रहा हूं। आखिरकार तीनों भाई राजी हो गए। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। 40 दिन तक जश्न मनाया गया। पूरा शहर दावतें खाता रहा। महल में खुशियों का समा था। बादशाह को अपने दामादों से बहुत मोहब्बत थी, मगर सबसे ज्यादा प्यार छोटे भाई नादिर से था। एक दिन बादशाह बाग में एक नाले के करीब लेटा आराम कर रहा था। नादिर भी पास बैठा था। अचानक नाले से एक जहरीला सांप निकला, सीधा बादशाह की तरफ बढ़ा। अभी वो काटने ही वाला था कि नादिर की नजर पड़ गई। एक लम्हा और तलवार नियाम से बाहर। एक ही वार में सांप के 2 टुकड़े कर दिए। नादिर अभी तलवार गिलाफ में रख ही रहा था कि बादशाह की आंख खिल गई। इसने नादिर को तलवार हाथ में देखा और उसके दिल में शक पैदा हो गया। दिल में सोचा, मेरी बेटी से शादी करके इसका गुरूर बढ़ गया है। ये मुझे मार कर खुद बादशाह बनना चाहता है। बादशाह फौरन वजीर के पास गया और सारा वाकया सुनाया। वजीर कई दिनों से इन भाइयों से जल रहा था। इसे मौका मिल गया। वो बोला, जहां पना, मेरी राय लिए बगैर अपनी बेटियों की शादी उन लफनगों से कर दी। देखा, आपका दामाद आपको कत्ल करना चाहता था। ये मक्कार एक ना एक दिन आपको खत्म कर देगा। बादशाह वजीर की बातों में आ गया। हुक्म दिया, नादिर को फौरन कैद कर दिया जाए। नादिर को जेल में डाल दिया गया। इसकी बीवी का बुरा हाल हो गया। वो रोती रही, सिसकती रही। आखिर एक दिन वो अपने बाप के सामने गई और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, अब्बा जान, मेरे शौहर बेगुनाह है, उन्हें रहा कर दीजिए। बादशाह कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर हुक्म दिया, नादिर को जेल से निकालकर मेरे सामने पेश किया जाए। नादिर को दरबार में लाया गया। हाथ बंधे हुए नहीं थे, मगर फिजा में इल्जाम की सख्ती थी। बादशाह ने सख्त निगाहों से इसे देखा और कहा, मैंने कभी सोचा भी ना था कि तुम इतने मक्कार निकलोगे। तुमने मुझे मार डालने का इरादा कैसे कर लिया? नादिर ने सर झुकाया, फिर आहिस्ता से बोला, जहां पना, जवाब देने से पहले मैं आपको एक तोते का किस्सा सुनाना चाहता हूं। अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं? बादशाह ने इशारा किया। कहो। नादिर ने कहना शुरू किया। इसी जमाने में एक बादशाह रहता था। इसके पास एक निहायत खूबसूरत तोता था। बादशाह इस तोते से बेहद मोहब्बत करता था। एक लम्हा भी इसके बगैर दिल ना लगता। तोता मीठी मीठी बातें करता, किस्से सुनाता और बादशाह का दिल बहलाता रहता। एक दिन तोता बोला, बादशाह सलामत, मैं हिंदुस्तान में अपने माँ बाप और बहन भाई छोड़ आया हूं। दिल चाहता है उनसे मिल आऊं। मेहरबानी करके 20 दिन की छुट्टी दे दीजिए। 6 दिन जाने में लगेंगे, 6 दिन आने में, और 8 दिन में अपने प्यारों के साथ गुजार लूंगा। बादशाह फौरन बोला, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे मालूम है, एक बार गए तो वापस ना आओगे। मेरा दिल उदास हो जाएगा। तोता बोला, नहीं हुजूर, मैं वदा करता हूं, जरूर लूट आऊंगा। काफी सोच विचार के बाद बादशाह मान गया, मगर बोला, 20 दिन नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते। तोते ने कहा, जी हुजूर, मैं 2 हफ्तों में वापस आ जाऊंगा। बादशाह ने पिंजरा खोल दिया। तोता पर फैलाए जुनूब की तरफ उड़ गया। बादशाह देर तक इसे आसमान में गायब होते देखता रहा और दिल में सोचा, अब ये कभी वापस नहीं आएगा। 6 दिन में तोता हिंदुस्तान पहुंच गया। बड़ी तलाश के बाद अपने माँ बाप को ढूंढ लिया। खुशी का ठिकाना न था। वो उड़ता फिरता, गीत गाता, प्यारी प्यारी बातें करता। खुशी के वो दिन ऐसे गुजरे जैसे पलक झपकते हों। इसे खबर भी ना हुई कि 2 दिन कैसे बीत गए। अब वापसी का वक्त आ गया था। 6 दिन इसे आने में लगे थे, 6 दिन वापस जाने में लगेंगे, और यूं 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। मगर दिल था कि मानता ना था। अपनों से जुदा होना पहाड़ जैसा लग रहा था। सब रिश्तेदार जमा थे। कोई कहता, मत जाओ, वापस ना जाना।
एक तोता बोला, क्या तुमने कभी किसी बादशाह को वदा निभाते देखा है? अगर वो इतना ही मेहरबान होता तो तुम्हें 14 साल कैद में रखने के बाद सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी देता। क्या तुम दुनिया में इसलिए आए हो कि कैद में रहो? बादशाह और शेर के करीब रहना खतरनाक भी है और नादानी भी। मगर तोता बोला, मैं वदा कर चुका हूं, वदा खिलाफी कैसे करूं? वो वापस जाने को तैयार हो गया। इसकी मां ने इसे करीब बुलाया और कहा, अगर तुम लूट ही रहे हो तो एक बात सुन लो, हमारे यहां एक खास किस्म का फल होता है, अमृत का फल। जो इसे खाए बूढ़ा भी जवान हो जाए। तुम ये फल बादशाह के लिए ले जाना और उससे कहना कि अगर आप मुझे आजाद कर दें तो ये इसके लिए तोहफा है। मुमकिन है इसके दिल में इंसाफ जाग जाए और वो तुम्हारे हाल पर रहम करे। सब ने मिलकर 3 छोटे छोटे फल तोड़े। तोते ने उन्हें अपनी चोंच में लिया, सबसे अलविदा कहा और शुमाल की तरफ उड़ता हुआ गायब हो गया। 6 दिन बाद वो वापस अपने बादशाह के पास पहुंच गया। इसने बड़े शौक से इन फलों की खासियत बयान की। बादशाह खुशी से झूम उठा। इसने एक फल मलिका को दे दिया और 2 फल खुद खाने के लिए प्याली में रख लिए। लेकिन वजीर का दिल लालच से भर गया। वो बोला, बादशाह सलामत, जल्दी न कीजिए, पहले इन फलों को आजमा लीजिए, कहीं नुकसान देना हो। बादशाह को बात पसंद आ गई। वजीर ने मौके पाकर उन फलों में हल्का सा जहर मिला दिया और फिर आजमाने के लिए 2 मोर मंगवाए। फल उनको खिलाए गए। मोर वहीं गिरकर मर गए। वजीर बोला, देखा हुजूर, अगर आप खा लेते तो क्या होता? बादशाह का चेहरा जर्द पड़ गया। इसने अफसोस से कहा, मैं भी मर जाता। गुस्से में आकर इसने पिंजरे से तोते को निकाला और उसकी गर्दन मरोड़ दी। बेचारे वफादार तोते को यही इनाम मिला। कुछ दिन गुजरे। एक दिन बादशाह को एक बूढ़े शख्स पर गुस्सा आ गया। इसने हुक्म दिया कि बचा हुआ अमृत का फल इसी बूढ़े को खुला दिया जाए। जैसे ही बूढ़े ने वो फल खाया, हैरत अंगेज मंजर सामने आया। इसके सर पर काले बाल उगाए, मुंह में नए दांत निकल आए, आंखों में जवानी की चमक लूट आई। देखते ही देखते 70 साल का बूढ़ा 20 साल का जवान बन गया। अब बादशाह को एहसास हुआ कि इसने नाहक तोते की जान ली थी। यह किस्सा सुनाकर नादिर ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, अब हुजूर, मैं आपको वो वाकया सुनाता हूं जो बाग में हुआ था। वो बाग में गया और वही सांप के 2 टुकड़े उठा लाया जो इसने तलवार से काटे थे। बादशाह ने जब ये देखा तो इसका सर शर्म से झक गया। वो नादिर से मुआफी मांगने लगा। नादिर ने अदब से कहा, हुजूर, हमें इजाजत दीजिए, हम तीनों भाई अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। मालूम होता है कि बादशाहों के साथ नेकी और अमन के साथ रहा नहीं जा सकता। बादशाह ने बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, मगर तीनों भाई ना माने। हम दरबारी बनकर नहीं रह सकते, हम अपनी मेहनत के बिल बोते पर जीना जानते हैं। बादशाह ने आखिरी बात कही, मेरी बेटियां तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, वो यहीं रहेंगी। ये सुनते ही तीनों शहजादियां एक साथ बोल उठीं, नहीं, हम अपने शोहरों के साथ जाएंगी। बादशाह हैरान रह गया। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर उसने इजाजत दे दी। तीनों भाई अपनी बीवियों को लेकर अपने वतन वापस लौट आए और अपनी मेहनत के सहारे सुकून और इज्जत की जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह किस्सा अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।